Namaskar and good evening. I know we have run short of chairs, but I guess when there is music, we can stand and tap our feet as well. So, in case any elderly person comes, it'll be nice if one of the youngsters could give their seat to that person. And before we start, I request all of you, because you wouldn't want to be disturbed, to take out your phones from your purses and your pockets and put them on silent mode. That's a sincere request, please. Thank you. जब हम महान गुरुदत्त के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बौछार सी आ जाती है कई विशेषणों की। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने समय से बहुत आगे थे। कुछ कहते हैं कि उन्हें दर्शकों की नब्ज की पहचान थी। कुछ कहते हैं कि वे एक संवेदनशील कलाकार थे। कोई इस बात से नहीं इनकार करता कि वे एक उत्कृष्ट निर्देशक और अभिनेता थे। पिछले साल 2025 को पिछले साल 2025 में उनकी जन्म शताब्दी थी। दास्तान ए गुरुदत्त is a musical tribute that remembers his legacy in an artistic, experimental, and deeply human form, giving us, the audience, the opportunity to experience his world through poetry, music, and storytelling. यह श्रद्धांजलि है और इसे भारत की सबसे पहली महिला दास्तान गो फौजिया दास्तान गो प्रस्तुत कर रही हैं। Breaking a glass ceiling, Fawzia for the last 20 years has performed in more than 500 shows held in India and abroad. Blessed with a unique voice, without any instrumental or vocal support, Fawzia has been enthralling her audience with this unparalleled 13th century art form. You can give another round of applause. Her team is here. She's supported by Sudeep on the tech there. The research was done by Asha Batra. Unfortunately, she's not here with us today. But this presentation has been very carefully, very lovingly curated and produced by Rupali and Vikas Jalan. Vikas, I would like you to say a few words before we invite Fawzia on the stage. Good evening, friends. Thank you for braving all the Hyderabad traffic and coming here. मैं सोच रहा है सब नहीं आते तो क्या होता, हम क्या करते। फिर हमने सोचा क्या करते, वही करते जो गुरुदत्त जी करते, कुछ ना कहते, लब सी लेते, आंसू पी लेते। But thank you. And why we chose Gurudutt? Because Gurudutt was not just an actor, cinematographer, writer, shayer. He's been a very strong emotion for all of us, and since our early years, very very strong emotion, and we wanted to bring the truth about the things about him for the new generation who know nothing about Gurudutt. They know everything what's happening today, but somebody without formal training of any kind excelled in all the fields, not one but all the fields, and made so many films of different kinds in a short span before he passed away only at 39. So just to inspire the young generation, हो सकता है किसी में कोई सिनेमेटोग्राफर जागृत हो जाए, किसी में एक्टर जागृत हो जाए, किसी में कोई शायर जागृत हो जाए बच्चे में। तो hope you enjoy, and Dastan e Gurudutt to be heard from Fawzia's mouth would be another different experience for you.
the emotions. She'll make you feel the emotions. Thank you, Fauzia. So, are you ready to be enthralled? Can we have a louder response? ख्वातीन और हज़रात आदाब, हाजरीन दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। तो दास्तान गोई नाम है उस फ़न का जिसमें दास्तानें बयान की जाती हैं। एक मिनट मैं Was it just a minute till the audience settle in? If anyone else wishes to come here, this is the time to sit here. Any of the youngsters from the back? Well, I would like you to come first, Shankar. थोड़ी सी आवाज़ ज़रा बढ़ा दीजिए। तो हाजरीन दास्तान गोई की ये महफिलें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मुनक़िद होती थीं। बहुत पुरानी बात है, 1928 में आखिरी दास्तान गो मीर बाक़र अली का इंतकाल हुआ। पता चला कि वो अपने आखिरी वक्त में छालियाँ बेच रहे थे। 1928 में वो पहाड़ी भोजला पे उनका इंतकाल हुआ। पहाड़ी भोजला की मेरी पैदाइश है। तो ये दास्तानें हमने बहुत सी सुनाई हैं। हैदराबाद में हमने 2017 में दास्तान महाभारत सुनाई है उर्दू में। हमने दास्तान राम सुनाई है उर्दू में, हम अयोध्या में परफॉर्म करके आए हैं। दास्तान कबीर सुनाई है। मीना कुमारी, मधुबाला और गुरुदत्त हमारी म्यूज़िकल दास्तान है। अब हाजरीन होता ये था उस ज़माने में, मैं थोड़ा सा वक्त लूँगी कहानी शुरू करने से पहले, कि उस ज़माने में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोग बैठते थे और ये कहानियाँ कई कई दिन, महीने और साल चला करती थी। लोग मुझसे हमेशा पूछते थे कि भाई ये लोग सोते नहीं थे क्या? भाई बिल्कुल सोते थे, लेकिन वो कहानी को एक ऐसी जगह पे लाके रोकते थे, जैसे अगर आज शनिवार का दिन है और मैं 6 बजे यहाँ कहानी सुना रही हूँ तो अगले शनिवार को आप फिर आएंगे ये जानने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या होगा, है ना। तो तिलिस्म होशरुबा, अरेबियन नाइट्स, इस तरह की कहानियाँ होती थी। उसी की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक दास्तान को दास्तान सुना रहे थे और वो दास्तान रोकते थे उस वक्त। तो कहानी में वो बयान कर रहे हैं, शादी का सीन है, दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है, दूल्हा सामने से आ रहा है। अब दास्तान गो ने बयान करनी शुरू करी उसकी खूबसूरती, उसका नाक, उसके कान, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, उसकी बालियां, उसकी कलाइयां, उसकी एड़ियां। जनाब 3 हफ्ते गुजर गए, वो सिर्फ दुल्हन की खूबसूरती बयान कर रहा था। तो आप ही जैसे लोगों में से आवाज़ आई, भाई 3 हफ्ते हो गए, इसका घूंघट तो उठा दें। तो आप घबराइए नहीं, आज हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हालांकि गुरुदत्त में ये मुमकिन है, हाँ, कि हम दास्तान रोकें, मगर हमारा ये मकसद ये है कि हम 1 घंटे में, एक तो हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमारा मकसद है कि हम उनकी छोटी छोटी ज़िंदगी की बातें आपसे करें और उसके बाद आप जाके गुरुदत्त को सुकून से पढ़ें और उनको याद करें। बस इतना सा मकसद है हमारा। और दास्तान शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें आपकी जो भूमिका है वो बराबर की है। अगर आपको कहानी में कोई बात, लफ्ज़ पसंद आए, मज़ा आए, लुत्फ़ आए, तो आप कहेंगे वाह। भाई एक ज़माना था, कहा जाता था कि जिसकी ताली पिट गई उसकी इज़्ज़त उतर गई। अब आज का ज़माना है, मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, जिसकी ताली नहीं पिटती उसकी इज़्ज़त उतर जाती है। तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप ताली बजाइए, दाद दीजिए, और ख़ास तौर से मुश्किल लफ्ज़ों पे ज़्यादा दाद दीजिए, इससे हमें पता चलेगा अरे वाह समझ में आ गया। तो आज की शाम का मैं आगाज़ करती हूँ। 2 लोगों का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी। मेरा नाम फौजिया दास्तान गो है। विकास जलान और आशा बत्रा, आशा जी इत्तेफाक से यहीं हैं हैदराबाद में, लेकिन वो रामोजी सिटी में एक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो इस वक्त यहाँ आ नहीं सकी। विकास जलान और रूपाली जलान यहाँ मौजूद हैं। इन 3 लोगों के ने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो आज हम गुरुदत्त आपके मंजर आम पर नहीं ला सकते थे। तो हाजरीन, पेश है दास्तान गुरुदत्त, और ये ट्रेडिशनल दास्तान गोई नहीं है, क्योंकि आप लोगों में से अगर किसी ने कोई ट्रेडिशनल दास्तान गोई देखी है तो ये ट्रेडिशनल दास्तान गोई नहीं है, क्योंकि हमने इसमें ऑडियो विजुअल डाले हैं, हमने इसमें, और इसलिए भी डाले हैं क्योंकि अकबर ने एक बार जब तिलिस्म होशरुबा की दास्तान शुरू हुई थी तो अकबर ने हमज़ा नामा बनवाया था। तो जब दास्तान लोग सुनाते थे उस ज़माने में, तो भाई वो पीपीटी का सिस्टम नहीं था ऐसा, तो वो पीछे वो हमज़ा नामा चलता था, हाँ। तो थोड़ा सा हमने कॉपी करने की कोशिश की है। तो हाजरीन, आज की शाम का आगाज़
दास्तान गुरुदत्त। तो आइए दास्तां का करें आगाज, एक बुलबुले चमन को जिस पे था नाज, तर्ज जिसकी जुदा जुदा अंदाज, जो के था अपने वक्त की आवाज, जिसका आशिक तमाम आलम है, जितनी तारीफ कीजिए कम है, आज हम कर रहे हैं उसको याद, आप थी जिसकी खामोशी फरियाद, फिल्म साजी के फन का था उस्ताद, उसके जैसे हुआ न उसके बाद, धूप में जो फुहार मध्यम था, बज़्म गुल में जो मिसले शबनम था, जिसने छेड़ी थी कैमरे पे गज़ल, नग़्मे ज़िंदगी बसाज़े अजल, जो गया अपनी रोशनी में पिघल, ढूंढने पर मिले न जिसका बदल, अक्स दरक्स था वो महवे कलाम, है गुरुदत्त उस चराग का नाम, है गुरुदत्त उस चराग का नाम। ख्वातीनो हजरात, आज हम जिस अजीम फनकार की दास्तान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो सिर्फ एक फिल्मकार नहीं, सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि एक शायर भी था जो रीलों पर उदासी की गज़ल कहने का हुनर जानता था। उसके हिस्से में गमों की कड़ी धूप तो खूब आई, पर खुशियों की रिमझिम से उसकी दुनिया कम कम ही आबाद हो सकी। ये बात सच है कि उस तक पहुंचने का रास्ता जिंदगी की तल्ख हकीकतों की तरह पथरीला और खारदार है, लेकिन फिल्म के पर्दे पर उसका जादू सदाबहार है। उसका अफसाना ख्वाबों के खूबसूरत जजीरे की तरह आबाद है, पर हकीकत रज्जगों और बेचैनियों की एक अनकही रुदाद है। आज हम वही रुदाद लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो हाजरीन, किसी और गम में इतनी खलीशें निहा नहीं हैं, गमे दिल मेरे रफ़ीक़ो गमे रायगा नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। दूध मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल, लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल, मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल, मेरा काला काला दिल है, मेरे गोरे गोरे गाल। मैं चली जिस गली घूमे सारा गाँव रे, दूध मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल घूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। तो हाजरीन, इस कहानी का आगाज़ होता है 1920 में, जब मंगलौर के एक छोटे से कस्बे में एक नया नवेला जोड़ा किसी ज्योतिषी के पास पहुंचता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद से परेशान ये जोड़ा अपनी आप बीती उस ज्योतिषी को सुनाता है और अपनी किस्मत का राज दरियाफ्त करता है। लड़की का हाथ देखते ही ज्योतिषी की आंखें चमक उठती हैं। बेटी, तुम्हारा नसीब बहुत ऊंचा है, चंद ही बरस के अंदर तुम्हारे घर एक ऐसे बेटे का जन्म होगा जिसकी पहचान सरहदों में कैद ना हो सकेगी। उसकी रोशनी तुम्हारे आंगन से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। दुनिया उसे उसके नाम से नहीं, उसके हुनर से पहचानेगी। वक्त गुजरता है, जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियों और गमों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, और फिर आती है वो तारीख 9 जुलाई 1925, यानी गुरुदत्त की पैदाइश का दिन। पैदाइश के 12वें दिन पालने की रस्म हुई। पूरा घर फूलों और रंगोलियों से सजाया गया। भोज, प्रसाद, उपहार और आशीर्वाद से पादुकोण परिवार का आंगन खिल उठा। बच्चों के लिए
दो नाम सुझाए गए। किसी ने कहा वसंत कुमार रख दो, तो किसी ने कहा गुरुदत्त। चूंकि जन्म गुरुवार को हुआ था, इसलिए वसंती और शिवशंकर ने अपने बेटे का नाम गुरुदत्त रखा। ख्वातीनो हजरात, गुरुदत्त का परेशानियों से नाता काफी पुराना था। उनके पिता सफलता में नहीं, कविता में यकीन रखते थे, जो जिंदगी गुजारने और घर चलाने के लिए काफी नहीं था। इसलिए परिवार को बड़े बेटे गुरुदत्त से काफी उम्मीदें थीं। शहर दर शहर भटकता हुआ ये परिवार आखिर में कलकत्ता पहुंचा और यहीं गुरुदत्त के बचपन का बाकायदा आगाज हुआ। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, हो ला ला ला, हो ला ला ला, हो ला ला। सुन पल है तेरे जीवन के, धूम मचल अभी दिन है मिलन के, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना खोना ना। कदरे गौहर शाहदानत या बदानत जौहरी, यानी मोती की कदर या तो बादशाह जानता है या सुनार। कलकत्ता में ही गुरुदत्त की मुलाकात उस शख्स से भी हुई जिसने उनकी तमाम बेचैनियों और उनके तमाम सवालों को सिनेमा की तरफ मोड़ दिया। उस शख्स का नाम था बीबी बेनेगल। बेनेगल गुरुदत्त के रिश्ते के मामा थे और यकीनन उनके पहले गुरु भी थे। बेनेगल ने गुरु के अंदर छुपे हुए कलाकार को बचपन में ही पहचान लिया था। गुरुदत्त हर इतवार को अपनी नानी के साथ ट्राम में बैठकर बेनेगल के घर पहुंच जाते और उनके ग्रामोफोन पर एसडी बर्मन के गाने बार बार बजाते। उनकी गैर मौजूदगी में उनका कैमरा उठाकर चिड़ियाघर चले जाते और वहां जानवरों की तस्वीरें खींचते। कैमरे से खेलते रहते और कहते, एक दिन मैं भी फिल्म बनाऊंगा। गुरुदत्त के इस मासूम ख्वाब पर बेनेगल ने उन्हें कभी नहीं टोका, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की। बेनेगल की दुनिया में ख्वाब देखने की इजाज़त थी हाजरीन। वो ऐसी दुनिया थी जहां तखय्युल को दबाया नहीं जाता था, बल्कि परवान चढ़ाया जाता था। कलकत्ता में भी परिवार की मुश्किलें कम नहीं हुई। घर की हालत खस्ता थी। खर्च चलाने के लिए वसंती ने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करने के बाद गुरुदत्त को भी मजबूरन नौकरी करनी पड़ी। शुरुआती दिनों में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी और फिर हिंदुस्तान लीवर में कलकत्ता ऑफिस में मुलाजमत। जिंदगी बेहतरी की तरफ तो बढ़ रही थी, लेकिन गुरुदत्त अंदर से खुश नहीं थे। वो रोज इस नौकरी में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। एक सुबह गुरुदत्त अपने मामा बीबी बेनेगल से मिलने गए। बेनेगल ने हाल ही में एक नई पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में एक सांप ने एक आदमी के जिस्म को पूरी तरह से जकड़ रखा था। पेंटिंग देखकर गुरुदत्त से रहा नहीं गया। फरमाया, मामा, इसे देखकर मेरा नाचने का मन कर रहा है। बेनेगल उनके अंदर उठ रहे तूफान को फौरन भाप गए। वो गुरुदत्त को कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन ले गए और कैमरा खोलकर कहा, नाचो। पुरजोश और मदमस्त गुरुदत्त ने बेनेगल की लाल शाल अपने सिर पर रख ली, अपनी कमर पर एक पीला कपड़ा बांध लिया और अपनी धुन में रक्स करने लगे। वहां कोई संगीत नहीं था, खामोशी की ताल थी और उस पर थिरकते हुए गुरुदत्त। बेनेगल के कैमरे में कैद ये कोई मामूली रक्स नहीं था हाजरीन, ये नौजवान गुरुदत्त की आज़ादी का रक्स था। रक्स से आज़ादी हुआ जब खामोशी की ताल पर चढ़ गया ख्वाबों का नशा, जिंदगी की चाल पर तोड़कर पिंजरा परिंदा आसमां में उड़ गया और किताबे उम्र में ताज़ा वरक एक जुड़ गया और किताबे उम्र में ताज़ा वरक एक जुड़ गया।
तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला तू, निगाहों से भला तू, इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। दोस्तों की मदद से उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर अल्मोड़ा में गुरुदत्त ने ऑडिशन दिया और फौरन उनको वहां चुन भी लिया गया। जब गुरुदत्त कलकत्ता से अल्मोड़ा पहुंचे तब उनकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। काले घने बाल, खामोश चेहरा और उस पर ऐसी मासूमियत कि जो एक बार देख ले वो भूल ना पाए। उदय शंकर को उनके टैलेंट से ज्यादा उनके अंदर लावे की तरह उबलता हुआ जज्बा पसंद था, वो जुनून जो किसी फनकार की पहचान होता है। उनके अंदर जो आर्ट था वो उसी वक्त जाहिर हो चुका था। सबको मालूम था कि ये लड़का आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा। तो इंडिया कल्चर सेंटर में उनके रूम पार्टनर थे सरदार मलिक। जी हाँ, मशहूर संगीतकार सरदार मलिक। मलिक कहते हैं कि मुझे गाने का बहुत शौक था और गुरुदत्त को पढ़ने का। वो दिन रात किताबों में खोए रहते। कहते थे, कैसे करें मलिक, गाने से मेरा ध्यान भटकता है, मैं पढ़ नहीं पाता। इस पर मलिक ने हंसते हुए कहा, अरे एक दिन मैं सो जाता हूँ, तुम पढ़ो, और एक दिन तुम सो जाना, मैं धीमी आवाज में रियाज कर लूंगा। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ने उन्हें आखिरकार वो जगह दे दी है जहां वो खुलकर सांस ले सकते थे। रक्स, मौसीकी, लय, तस्वीर और तसव्वुर, यही तो थी उनकी दुनिया। अभी चंद साल ही गुजरे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया और उदय शंकर को अपना डांस सेंटर बंद करना पड़ा। ये खबर गुरुदत्त के लिए एक जबरदस्त सदमा थी। हाजरीन, जिंदगी अभी संभली ही थी, आंखों में कुछ ख्वाब जड़ पकड़ने लगे थे कि फिर से वही दरबदरी, वही सवालात, वही बेयकीनी और वही अनजाना सा खौफ। वो कहते हैं ना, घर से निकले मंजिले मकसूद की जानिब गए, देखिए हमको जुनू इस बार ले जाए कहाँ। ख्वाब आंखों में लिए हम ढूंढते हैं रात दिन, वक्त की इस धूप में होते हैं अब साए कहाँ। वक्त की इस धूप में होते हैं अब साए कहाँ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस बड़ी दुनिया में। ख्वातीन हजरात, अल्मोड़ा से निकले तो किस्मत गुरुदत्त को पूना ले गई। यहाँ प्रभात स्टूडियो में 50 रुपए महीने पर बतौर असिस्टेंट डांस डायरेक्टर काम मिल गया। उन दिनों प्रभात स्टूडियो में हम एक हैं की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मरकजी किरदार निभा रहे थे देवानंद। बकौल देवानंद वो जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहीं पास के कमरे में एक खूबसूरत मोहतरमा भी क़याम पजीर थी। नौजवान देवानंद की आंखें उनसे चार हुईं और देखते ही देखते दोनों में कुर्बत बढ़ गई। अजी कुर्बत क्या, बात इससे भी 2 हाथ आगे निकल गई। एक दिन मोहतरमा ने देव साहब से उनकी पसंदीदा शर्ट पहनकर आने की फरमाइश कर दी।
पूछने पर पता चला कि अगले रोज उनका जन्मदिन है और वो अपने नए नवेले आशिक का दीदार उनकी पसंदीदा शर्ट में करना चाहती हैं। जनाब, आशिकी चीज ही ऐसी है। माशूक कहे दिन तो दिन, रात तो रात। अगले रोज देव साहब ने अपनी पूरी अलमारी छान मारी, पर पसंदीदा शर्ट का नामो निशान नहीं। परेशान होकर देव साहब ने अपनी बहन को फोन किया। उनकी बहन भी उन दिनों इत्तेफाक से पुणे में ही रुकी हुई थी। अरे ये लो, यही तो है तुम्हारी शर्ट। अलमारी से एक कमीज निकालते हुए उन्होंने कहा। देवानंद ने कहा, ये बिल्कुल मेरी शर्ट नहीं है। देवानंद दुखी हो गए। अच्छा, अरे मगर ये शर्ट भी इतनी बुरी नहीं है, अच्छी लगेगी तुम पर, पहनकर तो देखो। मरता क्या ना करता, देव साहब धोबी की इस कारिस्तानी को मन ही मन में कोसते हुए किसी दूसरे की कमीज पहनकर स्टूडियो के लिए रवाना हो गए। भाई, प्लान ये था कि स्टूडियो के बाद मोहतरमा से मुलाकात होगी। स्टूडियो पहुंचे तो लगभग उनकी ही उम्र और कद काठी का एक नौजवान स्टूडियो से बाहर निकल रहा था। दोनों जब पास से गुजरे तो नौजवान रुका और उसने गुरुदत्त से कहा, हेलो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम एक हैं कि लीड एक्टर हैं, स्टूडियो में आपके बड़े चर्चे हैं। देव साहब ने कहा, बरखुरदार, बिल्कुल सही पहचाना, खाकसार को देवानंद कहते हैं। गुरुदत्त ने कहा, जी, मेरा नाम गुरुदत्त है, मैं मिस्टर बेडिकर को असिस्ट कर रहा हूँ। नौजवान ने खुद का तारुफ कराते हुए कहा। इस सरसरी बातचीत के बाद दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि दोनों की नज़र एक दूसरे की शर्ट पर पड़ी। गुरुदत्त ने कहा, काफ़ी खूबसूरत शर्ट है, कहाँ से खरीदी? देवानंद ने जवाब दिया, अरे मियाँ, शर्ट तो आपकी भी काफ़ी शानदार है, आपने कहाँ से ली? गुरुदत्त ने कहा, अच्छी, मैंने तो चोरी की है। अब ये है ही इतनी खूबसूरत, क्या करता? देव साहब ने कहा, और मुझे मेरे धोबी ने तोहफे में दी है। ये कहते ही दोनों हंस पड़े। ये खूबसूरत इत्तेफाक देखते ही देखते दोस्ती में बदल गया। एक ऐसी दोस्ती जो उम्र भर की दोस्ती में तब्दील हो गई। इसी दौरान उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जिस दिन देवानंद प्रोड्यूसर बनेंगे वो गुरुदत्त को डायरेक्टर के तौर पर अपनी फिल्म में लेंगे, और अगर गुरुदत्त ने किसी फिल्म का डायरेक्शन किया तो वो देवानंद को बतौर हीरो अपनी फिल्म में लेंगे। कुछ वक्त के बाद प्रभात फिल्म कंपनी के साथ गुरुदत्त का इकरारनामा भी खत्म हो गया और वो बम्बई आ गए। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा हा। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नामो निशान। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ख्वातीन और हजरात, गुरुदत्त के पास कोई काम नहीं था। अंदरून मायूसी और गुस्से से भर चुका था। कहने को बहुत कुछ था, मगर खामोशी ने चारों जानिब एक दीवार सी तामीर कर दी थी। ऐसे में उन्होंने कलम का दामन थाम लिया। अंदर लावे की तरह उबलते हुए जज्बों को अल्फाज के मोती में पिरोना शुरू कर दिया। अपनी बेचैनी और वक्त की कशमकश को कागज के पन्नों में कैद करने लगे। दफ्तरों के चक्कर काटते हुए लिखी गई इस कहानी का उन्वान भी पहले कशमकश ही था। इस कहानी में गुरुदत्त की नाराजगी, नाउम्मीदी और उलझन अपने अपने असली तेवर में नजर आए। उसे लिखते वक्त उन्होंने खुद से वादा कर लिया था कि एक दिन वो इस कहानी को कागज के सफ़ेद सियाह पर्दे से उठाकर फिल्मी पर्दे पर जिंदा जरूर करेंगे। हाजरीन, आज हम और आप गुरुदत्त के उस ख्वाब को प्यासा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वही प्यासा वही प्यासा जिसे टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी की 100 सबसे बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया था। ये पूछे ये नीलाम घर दिल कशी के,
ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ये पुरपेच गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ख्वातीनो हजरात, जिंदगी उस कश्मकश का नाम है कि अपने भी अपनों को भूल जाते हैं। इस भाग दौड़ में पीछे छूट जाने वालों पर कम ही लोग पलट कर नजर करते हैं, पर होते हैं कुछ ऐसे दीवाने जो मिसालें कायम करने का भी हुनर जानते हैं और हौसला रखते हैं। होती हैं कुछ ऐसी दोस्तियां जो बड़े छोटे और अमीर गरीब के फर्क को कुछ नहीं समझती। होती हैं ऐसी कस्में जो कभी नहीं टूटती। होते हैं ऐसे वादे जो ज़रूर वफा होते हैं। 1948 में जिद्दी की रिलीज होने के बाद देवानंद स्टार बन चुके थे। फिल्मी दुनिया में उनका सिक्का चल चुका था। आंखों में ख्वाब लिए पूना से निकले दो दोस्तों में से एक अपनी मंजिल के बेहद करीब था और दूसरा काम की तलाश में दफ्तरों के मायूस चक्कर काट रहा था। एक शाम अचानक देवानंद तोहफों और गुलदस्तों के साथ गुरुदत्त के घर पहुंचे। उन्होंने खुशखबरी दी कि वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और कहा, गुरु मैं चाहता हूं कि इस फिल्म का डायरेक्शन तुम करो। गुरुदत्त की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वादा अपनी जगह, लेकिन देवानंद को गुरुदत्त की सलाहियतों का बखूबी अंदाजा था। फिल्म का नाम था बाजी। तो हाजरीन, आगाज हो चुका था खुशी के दिनों का। अब किस्मत ने कर लिया था हमें यूं ही मुंतखब। आंगन में चांदनी का बसेरा था रोज़ो शब। एक दर्द मन था जिसे दिल की खबर थी सब। बरसों के बाद वादा निभाने वो आया था। नेमत है दोस्ती ये बताने वो आया था। नेमत है दोस्ती ये बताने वो आया था। ख्वातीन हजरात, बाजी फिल्म की लीड सिंगर गीता रॉय थी। वो पहले दिन जब गानों के रिहर्सल के लिए पहुंची तो एक नौजवान उनकी गाड़ी के पास आया और बोला, आइए मैं आपको रिहर्सल रूम लिए चलता हूँ। बंगाली में बात करते हुए उस आदमी को देखकर गीता रॉय थोड़ा सा चौंकी। अंदर पहुंचकर उन्होंने बर्मन से पूछा, ये बंगाली सज्जन कौन है? बर्मन ये सुनकर हंस पड़े। अरे वो बंगाली नहीं है, बस उसका नाम गुरुदत्त है। वो इस फिल्म का डायरेक्टर है। ख्वातीनो हजरात, ये थी गीता रॉय की गुरुदत्त से पहली मुलाकात। दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत मचल मचल गई। नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। कल तक हमारा ना पूछ कैसा हाल था, मिलती कहीं आंख दिल को ये मलाल था। उसने जो देखा तो हसरत निकल गई। सुन प्यारे अपनी तो किस्मत बदल गई। हाजरीन, इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला कभी नहीं थमा। दोनों कभी देवानंद के घर होने वाली पार्टियों में मिलते, कभी शूटिंग से वक्त चुरा कर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। बारिश दोनों को बेहद पसंद थी। बारिश होती तो दोनों खुद को रोक ना पाते और सड़क पर निकल पड़ते। घंटों बंबई की भीगती सड़कों पर चहलकदमी करते। गुरुदत्त
गीता रॉय पर फिदा हो चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त गुरुदत्त अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे, जबकि गीता रॉय आसमान का चमकता हुआ सितारा थी। मगर वो कहते हैं ना, वो अहदे जवानी वो खराबात का आलम, नगमात में डूबी हुई बरसात का आलम, आवाज में कलियों के चटकने की लताफत, रफ्तार में बहते हुए नगमात का आलम, हंसती हुई आंखों से सवालात की बारिश, हंसती हुई आंखों से सवालात की बारिश, जलते हुए होठों में जवाबात का आलम, कुछ मुझको खबर थी ना उन्हें होश था अपना, अल्लाह रे मदहोशियो जज्बात का आलम, ए राशे मस्ती का सबब पूछने वाले, देखा है कभी पहली मुलाकात का आलम। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। यूं हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए, ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। ख्वातीनो हजरात, उन दिनों बाजी की शूटिंग शुरू ही हुई थी। सेट पर देवानंद और गुरुदत्त किसी सीन को लेकर बातचीत में बेहद मशगूल थे कि अचानक एक शराबी लड़खड़ाता हुआ सेट के अंदर दाखिल हो गया और आसपास रखी चीज़ों से टकराते हुए गुरुदत्त के बिल्कुल सामने जा पहुंचा। सेट पर अफरा तफरी मच गई। सबकी निगाहें उस शराबी पर टिकी थीं। शराबी अपने आप से ऊल जरूल बातें करता, मन ही मन बकबकाता, लेकिन उसका अंदाज मज़ेदार था। उसकी हरकतें देखकर सेट पर मौजूद तमाम लोग हंसी से लोट-पोट हो गए। किसी को कुछ समझ में आता कि अचानक वो संजीदा हो गया और नर्म लहजे में बोला, जी मैंने शराब नहीं पी है, मैं तो बस एक बस कंडक्टर हूँ, बल्ला साहनी साहब ने मुझे यहाँ सरप्राइज ऑडिशन देने के लिए भेजा है। बिना तैयारी के दिया गया ये ऑडिशन गुरुदत्त को बहुत पसंद आया। उन्होंने बाजी में उस बस कंडक्टर को रोल दे दिया। ख्वातीनो हजरात, उस बस कंडक्टर का नाम था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। जब गुरुदत्त ने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म बाज बनाई तो उसमें बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को भी लिया। जब फिल्म पूरी हो गई तो गुरुदत्त ने पूछा, भाई क्रेडिट में तुम्हारा नाम क्या दें? बदरुद्दीन काजी ही लिख दें? ये सुनकर बदरुद्दीन ने कहा, अरे ऐसा लगेगा जैसे किसी का निकाह पढ़ाने जा रहा हूँ। गुरुदत्त को यह सुनकर हंसी आ गई। वो कुछ देर सोचने के बाद बोले, यार तुम शराबी आदमी की एक्टिंग जबरदस्त करते हो और मेरी पसंदीदा विस्की है जॉनी वॉकर, तो जॉनी वॉकर ही तुम्हारा नाम होगा। मजे की बात यह है कि जॉनी वॉकर ने अपनी जिंदगी में शराब कभी छुई भी नहीं थी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया, कोने कोने देखा न जाने कहाँ खो गया। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। यहाँ उसे लाए काहे को बिना काम रे, जल्दी जल्दी ढूंढो के होने लगी शाम रे। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। ख्वातीनो हजरात,
इस सेगमेंट पर मैं आपकी खास तवज्जो चाहूंगी। तो बाजी ने सिनेमा दोस्तों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई कि गुरुदत्त रातों रात एक बड़ा नाम बन गए। बाजी के फिल्म बरदार यानी सिनेमाटोग्राफर थे वी रात्रा। उनके असिस्टेंट वी के मूर्ति ने शूटिंग के दौरान एक ऐसा खूबसूरत शॉट लिया कि गुरुदत्त उनके मुरीद हो गए। अपनी अगली फिल्म जाल में गुरुदत्त ने उन्हें चीफ सिनेमाटोग्राफर बनाया। इस फिल्म के बाद गुरुदत्त की हर फिल्म में कैमरे के पीछे वी के मूर्ति ने ही मोर्चा संभाला। गुरुदत्त और वी के मूर्ति जब किसी शॉट को लेकर गुफ्तगू करते तो नज़ारा देखते ही बनता था। दोनों अपने काम में माहिर और अपनी धुन के पक्के। बातों में इस कदर गुम हो जाते कि एहसास ही नहीं होता कि आसपास लोग बैठे हैं। इसी सिलसिले का एक वाकया पेश खिदमत है। तो हुआ यूं कि गुरुदत्त दाढ़ी बना रहे थे, जी हाँ, हजामत, और साथ साथ वी के मूर्ति से एक शॉट के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक शॉट को लेकर बहस बहुत गर्म थी। कुछ लोग हॉल में बैठे हुए थे, उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक गुरुदत्त ने रेजर फेंका और जोर से चीखे, क्या करते हो यार तुम मूर्ति, तुम बर्बाद कर दिया है तुमने मुझे। मूर्ति ने डरते डरते कहा, मगर मैंने क्या किया, मैं तो बस शॉट के बारे में बात कर रहा था। गुरुदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, यार तुमसे शॉट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूछें उड़ा दी हैं। ये सुनना था कि हॉल में बैठे सभी लोग हंस पड़े। उस दिन शूटिंग में गुरुदत्त को नकली मूछों से काम चलाना पड़ा। अबरार अलवी भी गुरुदत्त की टीम का हिस्सा इत्तेफाक से बने। जाल की शूटिंग के दौरान वो यूं ही सेट पर घूमने चले आया करते थे। एक दिन कोई सीन दोबारा लिखने का काम आया। अबरार ने मौका लपक लिया। उन्होंने अपनी कलम के जादू से उस सीन में जान डाल दी। गुरुदत्त अबरार की इस फिल्बदी यानी बिला तैयारी की सलाहियत से बेहद खुश हुए। उन्होंने अपनी अगली फिल्म आर पार लिखने का काम अलवी को सुपुर्द कर दिया और इस तरह अबरार अलवी भी गुरुदत्त की टीम का कभी अलग ना होने वाला हिस्सा बन गए। हाजरीन, गुरुदत्त का मिजाज और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो अपने साथ काम करने वाले फनकारों की तख्लीकी आज़ादी यानी क्रिएटिव फ्रीडम का ख़ास ख्याल रखते थे। जॉनी वॉकर को अपने डायलॉग्स और अंदाज चुनने की पूरी आज़ादी थी। अबरार अलवी को स्क्रिप्ट के मामलों में ज़्यादा रोक टोक न थी और वी मूर्ति अपना काम पूरी आज़ादी के साथ करते थे। ये गुरुदत्त की खासियत थी। हुनरमंदों की पहचान उन्हें खूब थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक नगीने जमा किए और इन्हें एक खूबसूरत हार में पिरोने का काम किया जिसका नाम था गुरुदत्त फिल्म्स। राज खोसला, वी मूर्ति, जॉनी वॉकर, अबरार अलवी सब इस ड्रीम टीम का हिस्सा बने। ये टीम गुरुदत्त के साथ शुरू से आखिर तक रही। उन्होंने इस टीम को उस वक्त भी अपने साथ रखा जब उनके पास काम नहीं था। वो तमाम लोगों को तब भी लगातार तनख्वाह देते रहे। इस टीम ने मिलकर गुरुदत्त फिल्म्स के लिए एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। वो फिल्में जो सिनेमा के पर्दे से निकलकर दिलों पर दर्ज हो गईं। उस वक्त के जितने भी बड़े निर्देशक थे हाजरीन, अगर आपको याद हो, उन सब का अपना एक ख़ास अंदाज था। फिर वो चाहे बिमल रॉय हो, महबूब हो या राज कपूर। गुरुदत्त इस माने में बहुत बड़े निर्देशक थे। उनकी रेंज बहुत बड़ी थी। कुल 10 बरस तक उन्होंने फिल्म डायरेक्शन किया, लेकिन किसी एक ख़ास अंदाज में बंद कर नहीं रहे। लकीर का फ़कीर बनना उनकी फितरत में था ही नहीं। उन्होंने कभी कोई हिट फार्मूला पकड़ा ही नहीं। शुरुआत क्राइम थ्रिलर बाजी से की, फिर एक्शन की तरफ आए और जाल बनाई। अगली फिल्म आर पार ड्रामा थी और फिर मिस्टर एंड मिसेस 55 में कॉमेडी पर हाथ आजमाया। ये थी गुरुदत्त की रेंज। ख्वातीन हजरात, वो कहते हैं ना, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं, नायाब हैं हम जो याद ना आए भूल के फिर, ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम, ए शौक़ पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खुला, हम में है दिले बेताब निहा, या आप दिले बेताब हैं हम। खैर, कुछ ही वक्त के बाद गुरुदत्त और गीता दत्त की सगाई भी हो गई और फिर शादी।
हालांकि गुरुदत्त और गीता दत्त एक मोहब्बत की दो परतें, एक ख्वाब के दो चेहरे थे। शादी से पहले ही दोनों में ये फर्क साफ साफ नजर आता था। उनके दरमियान जो फासला था वो सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं था, बल्कि दो नजरियों, दो मिजाजों और दो अलग दुनियाओं का था। जहां गीता दत्त एक खुश मिजाज जिंदगी की हकीकतों से मोहब्बत करने वाली और रिवायती जज्बात में गुंदी हुई खातून थी, वहीं गुरुदत्त पेचीदा जहन के मालिक, तन्हाई, कशमकश और अंदरूनी खलफिशार से भरे हुए इंसान थे। पर कहते हैं ना, मोहब्बत में करे क्या कुछ किसी से हो नहीं सकता, मेरा मरना भी तो मेरी खुशी से हो नहीं सकता। वो इश्क ही क्या जो अंजाम के डर से आगाज में ही अपने परों को समेट ले। इश्क होना था हुआ, और तमाम खूबियों और खामियों को दरकिनार कर दोनों शादी के बंधन में बंधे। ये गालिबन गुरुदत्त की जिंदगी का सबसे हसीन दौर था। हाजरीन, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हाजरीन, गुरुदत्त किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे, जहां उनकी कार एक भैंस से टक्कर हो गई। इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ। एक दिन का सफर 3 दिन में तब्दील हो गया। जिस काम से गए थे वो भी ना हो सका। गुरुदत्त इस बात से काफी चिढ़े हुए थे। मरता क्या ना करता, अब दिन तो काटने ही थे। किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने वो उनके ऑफिस चले गए। अभी पहुंचे ही थे कि बाहर अचानक तेज शोर सुनाई दिया। सामने एक कार आकर रुकी, जिसको भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा खुला और एक लड़की कार से बाहर निकली। ये मंजर देखकर गुरुदत्त कुछ लम्हों के लिए ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ देखा। जी, ये वहीदा रहमान है। डिस्ट्रीब्यूटर ने मुस्कुराते हुए उस लड़की का तारुफ कराया। इस लड़की ने हाल ही में एक डांस नंबर किया है। अजी, ऐसा धमाका है कि लोग इस पर फरेफ्ता हो गए हैं। वहीदा रहमान, ये तो मुसलमान है, इसे तो उर्दू भी आती होगी। गुरुदत्त के दिल में एक लहर सी दौड़ गई, जैसे किसी देरीना तलाश की ग्रह खुल गई हो। उन्हें शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये मुलाकात उनकी ज़िंदगी में एक नया बाब खोलने वाली है। उन्होंने फ़ौरन डिस्ट्रीब्यूटर से वहीदा रहमान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करी। ये गुरुदत्त की वहीदा रहमान से पहली मुलाकात थी। कुछ ही महीने बाद गुरुदत्त ने उन्हें सीआईडी फिल्म में एक रोल देकर ब्रेक दे दिया। सीआईडी के बाद गुरुदत्त मूवीज प्राइवेट लिमिटेड की लगभग सभी फिल्मों में वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका रही। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया था। इसका असर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी हो पड़ा। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, सनसनाहट सी हुई, थरथराहट सी हुई, सनसनाहट सी
जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। किया आबाद वीराना रहे टूटे मकानों में, हमारी जिंदगी गुजरी मुसलसल इम्तिहानों में, मगर जागी हुई आंखों से हमने ख्वाब देखा है, हम अपना घर बनाएंगे किसी दिन आसमानों में, हम अपना घर बनाएंगे किसी दिन आसमानों में। ख्वातीनो हजरात, किराए के मकानों में गुजरा हुआ बचपन अपने लिए आगे चलकर एक बड़े घर का ख्वाब ज़रूर देखता है, अपने घर का ख्वाब। सो एक ख्वाब गुरुदत्त की आंखों ने भी देखा था। बॉम्बे के सबसे आलीशान इलाके में एक आलीशान बंगले का ख्वाब। पाली हिल का इलाका घने दरख्तों, समंदर के किनारों और खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से फिल्मी सितारों का पसंदीदा हुआ करता था। ये इलाका गुरुदत्त को भी काफी पसंद था। उन्होंने मन ही मन ये तय कर लिया था कि अगर किस्मत ने कभी साथ दिया तो एक दिन वो इसी इलाके में अपने सपनों का घर बनाएंगे। उन्होंने बिल आखिर पाली हिल में एक पुराना बंगला खरीद ही लिया, बंगला नंबर 48। 3 बीघों में फैला हुआ ये खूबसूरत घर गुरुदत्त के लिए अपने सपनों के घर जैसा था। उन्होंने इसे बड़े अरमानों से बनवाया था। लकड़ियां कश्मीर से आई थी, मार्बल्स इटली से मंगवाए गए थे और कालीन कालीन लंदन से आए थे। हरा भरा सुंदर लॉन, इंतहाई खूबसूरत बगीचा, समंदर के किनारे बसा ये आलीशान बंगला हर किसी को अपना कायल बना लेता था। गुरुदत्त खुद भी अपने घर को पाली हिल का सबसे खूबसूरत घर मानते थे। इस घर में गुरुदत्त और गीता दत्त ने अपनी शादी के बाद के सबसे खूबसूरत लम्हे बिताए थे। यहीं उनकी बेटी की पैदाइश भी हुई थी। शादी के शुरुआती दिन ख्वाबों की ताबीर जैसे थे, हर लम्हा मुस्कुराहट और हर मंजर बहार। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे, हर आहट पे समझे ओ आए गयो रे। झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। गुरुदत्त की शोहरत आसमान छूने लगी थी और गीता दत्त का करियर ढलान पर था। ये फर्क रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते के आईने में दरारें डालने लगा। कुछ मामूली नोक झोंक बहस व तकरार में बदली और फिर उनकी जिंदगियों का महवर ही बदल गया। गीता दत्त के दिल में एक वहम जन्म लेने लगा था। वो कहती थी कि जब से हम इस बंगले में आए हैं, खुशियों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। इस घर पर कोई साया है, कोई मनहूस साया, जो हमारी खुशियां निगल गया। यही वो मकान था हाजरीन, जिसे गुरुदत्त ने कभी अपने ख्वाबों का घर कहा था। अब वही घर उनके लिए एक कैद खाना बन चुका था और वो इस कैद से छुटकारा चाहते थे। कुछ सालों के बाद एक दिन गीता दत्त बंगले के गेस्ट हाउस में आराम फरमा रही थी, तभी अचानक उन्हें शोरगुल सुनाई दिया। वो बाहर आईं तो देखा कि मजदूर बंगले की दीवारें तोड़ रहे हैं। उन्होंने फौरन गुरुदत्त को फ़ोन किया। वहाँ से जवाब आया, मैंने ही उन्हें तोड़ने के लिए कहा है। फ़ोन पर दूसरी तरफ से गुरुदत्त की आवाज़ आई, हम होटल में रहेंगे, मैंने कमरे पहले ही बुक करा लिए हैं। देखते ही देखते गुरुदत्त के सपनों का घर खंडर में तब्दील हो गया। जैसे किसी फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद सेट को तोड़ दिया जाता है,
ठीक वैसे ही। हाजरीन, गीता जो कभी कहकों कहकों की तस्वीर थी, अब उदासी की मूरत में तब्दील होती जा रही थी। गुरुदत्त भी दिन ब दिन फिल्म के किरदारों की तरह होते जा रहे थे, तन्हा और खामोश। शादी चल नहीं रही थी, दरमियान में बदगुमानी की एक मजबूत दीवार थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। 1958 में गीता दत्त को लिखे एक खत में गुरुदत्त लिखते हैं, प्रिय जो भी हो, ये याद रखना कि तुम मेरा हिस्सा हो और हमेशा मेरा हिस्सा रहोगी। शायद तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शायद जब मैं ना रहूँ तब तुम्हें इसका एहसास होगा। गुरुदत्त जो सिनेमाई ख्वाबों की ज़बान बखूबी जानते थे, अपने दिल के नक्श पढ़ने में नाकाम रहे। लेकिन उन खामोशियों के पीछे कोई धड़कन शायद अब भी बाकी थी। जब गुरुदत्त ने महसूस किया कि गीता दत्त उनसे दूर हो रही हैं, उनके अंदर का वो नर्म गोशा जाग उठा जो अक्सर उनकी वहशत के पांव तले दब जाया करता था। और फिर एक खामोश सी कोशिश हुई मोहब्बत को दोबारा आवाज़ देने की, रिश्ते को फिर से बहाल करने की और गीता दत्त को वापस पाने की। गुरुदत्त ने गीता दत्त को अपनी पहली फॉरेन ट्रिप पर दावत दी। बैरूत की फिजाएं, वो समंदर, उन दोपहर की खामोशियों और रात की हल्की हल्की शराबों में कुछ ऐसा ज़रूर था जिसने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर दी थी। वहीं गुरुदत्त ने एक फैसला लिया कि वो ना सिर्फ गीता दत्त के करियर को सहारा देने का, बल्कि उन्हें हीरोइन के तौर पर लॉन्च करने का। बैरूत से लौटते ही उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया। फिल्म का नाम था गौरी और उसकी हीरोइन थी गीता दत्त। सुबह का वक्त था, कलकत्ता की फिजा में शूट की गहमा गहमी थी। गुरुदत्त ने आवाज़ दी, गीता को बुलाओ, शॉट रेडी है। किसी ने कहा, जी मैम मेकअप कर रही हैं, कुछ वक्त लगेगा। इस शॉट में कहानी के हिसाब से गीता दत्त को एक बिल्कुल सादा सी घिसी पिटी साड़ी पहननी थी, खुले बाल, माथे पर एक बिंदी, कोई सजावट नहीं, कोई चमक धमक नहीं। मगर देर होती गई, गुरुदत्त का सब्र जवाब देने लगा। उन्होंने रामू सरिया से कहा, अरे जाओ देखो यार, देखो क्या हो रहा है। रामू गए। मेकअप रूम में गीता आईने के सामने बैठी बाल संवार रही थी। भाभी, सब इंतज़ार कर रहे हैं, शॉट तैयार है। बस भैया आती हूँ, ये कहकर गीता फिर आईने में अपने बाल संवारने लगी। रामू वापस नहीं लौटे तो गुरुदत्त खुद चल दिए। दरवाज़ा खोला और अंदर का मंजर देखकर आग बबूला हो गए। ये क्या है? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? मैंने कहा था ना कि किरदार सादा है, सिंपल है। ये मेकअप, ये हेयर स्टाइल, क्या क्या गांव की औरतें ऐसी दिखती हैं?
यूनिट के सब लोग सुन रहे थे। गीता का चेहरा हैरत और दुख से पथराया हुआ था। फिर वो भी टूट गई। तुम क्या चाहते हो? यही ना, कि मैं वहीदा रहमान से बदतर लगूं? चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। गुरुदत्त पलटे और सन्नाटे में बस एक सदा तैर गई, पैकअप। वो शॉट जो होना था कभी नहीं हुआ, बस रह गई एक कभी न मिटने वाली खामोशी और दो टूटते हुए दिलों की आखिरी बाज़गश्त। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। गुरुदत्त मिजाज से जुनूनी थे और उनका जुनून उनकी फिल्मों में बखूबी नजर आता था। फिल्में उनका ख्वाब थी और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कोई अच्छी कहानी सुनते तो फौरन उसे पर्दे पर उतारने के मंसूबे बनाने लगते। उनकी तमाम फिल्में इसी बेइंतहा जुनून का नतीजा थीं। कागज़ के फूल इस जुनूनी सिलसिले की आखिरी कड़ी को कहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है, जूनियर आर्टिस्ट से लोग किस तरह से पेश आते हैं, कामयाबी को किस तरह से सराहा जाता है और कैसे नाकामी का एक झटका आपको हाशिए पर ला फेंकता है, इन तमाम पेचीदा सवालों का जायज़ा लेती हुई इस खूबसूरत फिल्म से गुरुदत्त को बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें यकीन था कि ये फिल्म भी प्यासा की तरह हाथों हाथ ली जाएगी, पर ऐसा ना हो सका। बाद में कागज के फूल अपने असलूब और जुदा गाना अंदाज के हवाले से जानी जरूर गई और इसका शुमार गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों में भी हुआ, लेकिन उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर माहौल नहीं बना सकी। जुनून और जज्बात का चोली दामन का रिश्ता है। गुरुदत्त जुनूनी भी थे और जज्बाती भी। फिल्म बनाते तो दिलो जान उस फिल्म पर कुर्बान कर देते। उन्होंने कागज़ के फूल में खुद को इस कदर झंझोड़ दिया था कि वो इसकी नाकामी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नासिर काज़मी की ज़ुबानी कहें, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो, बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया बरंगे ख्वाब गया वो। कागज़ के फूल की नाकामी के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गए थे। बीवी बच्चों से अलग एक फ्लैट में अकेले रहते थे। कुछ दोस्तों और अजीज़ों के सिवा किसी से नहीं मिलते थे। बाहर की दुनिया के लिए जो दरवाजे पहले से बंद थे अब पूरी तरह मुकफ्फल हो चुके थे। शराब और नींद की गोलियों के सहारे रातें गुजरने लगीं। उन दिनों अगर उनका कोई साथी था तो बस उनका खाली कमरा, खाली बिस्तर, खाली आँखें और उन आँखों में दूर दूर तक फैली हुई कभी ना ख़त्म होने वाली तन्हाई। उन दिनों बहारें फिर भी आएंगी की शूटिंग चल रही थी। रोज़ की तरह उस दिन भी गुरुदत्त स्टूडियो पहुंचे, लेकिन दोपहर के खाने के बाद पैकअप करके पतंग उड़ाने का फैसला कर लिया।
ड्राइवर को भेजकर बच्चों को बुलवाया और उनके साथ काफ़ी देर तक पतंग उड़ाई। फिर बच्चों के साथ स्टूडियो से निकले और चिराग दिन बुटीक पर शॉपिंग की। बच्चों के लिए और भाई देवी दत्त के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीदे। दिन भर की मस्ती के बाद बच्चों को उनके घर छोड़ा और ख़ुद देवी दत्त के साथ अपने फ्लैट पर आ गए। देवी दत्त को भूख लगी तो गुरुदत्त ने उनके लिए ऑमलेट भी बनाया। शाम हुई। देवी दत्त जब निकलने लगे तो गुरुदत्त ने उन्हें अगले दिन के क्रिकेट मैच की 2 टिकटें भी दी। देवी के निकलते ही अबरार अलवी पहुंच गए। उस रात अबरार बहारें फिर भी आएंगी के आखिरी सीन पर काम कर रहे थे। ये सीन फिल्म की हीरोइन माला सिन्हा पर फिल्माया जाना था, जो तमाम दुखों से परेशान खुद को एक बंद कमरे में बंद कर लेती हैं और दम तोड़ देती हैं। अबरार ने सीन गुरुदत्त को सुनाया और उनसे राय भी मांगी, पर गुरुदत्त खामोश रहे और शराब पीते रहे। अबरार ने दोबारा पूछा, आपको पसंद नहीं आया क्या? अपने ध्यान में गुम गुरुदत्त ने इस बार जवाब दिया, तुम्हें पता है अबरार, मुझे डर है कि मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा। तन्हाई वो बला है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद गुरुदत्त ने अबरार से सीन दोबारा सुनाने को कहा। सीन का खात्मा हीरोइन माला सिन्हा की मौत से होता है और क्लाइमेक्स में कैफी आज़मी की लिखी 2 लाइनें, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। इस बार पूरे ध्यान से सुनने के बाद गुरुदत्त ने अबरार की तारीफ की और कहा, अबरार इस फिल्म में हमारी हीरोइन छा जाएगी। अबरार अलवी देर रात तक स्क्रिप्ट को पूरा करने में लगे रहे। जब उन्होंने गुरुदत्त से खाने का पूछा तो गुरुदत्त ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। इतना कहकर गुरुदत्त अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये दरवाज़ा दोबारा कभी नहीं खुलने वाला था। वो जा चुके थे, जैसे किसी सीन का क्लोज़अप जिसमें कैमरा रुक जाता है और रोशनी रफ्ता रफ्ता आँखों से ओझल हो जाती है। गुरुदत्त की फिल्म जैसी ज़िंदगी का पर्दा गिर चुका था, सिर्फ 39 साल की उम्र में। बेवक्त की इस मौत ने पूरी फिल्मी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। हर आंख नम थी, हर चेहरा उदास था और हर शख्स हैरत में मुब्तला था। कैफी आज़मी ने गुरुदत्त की मौत का गम कुछ इस तरह बयान किया, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई, डरता हूँ कहीं खुश्क ना हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई, एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई, माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, माना कि उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई, साक़ी से गिला था तुम्हें मैखाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई, हर सुबह हिला देता था जंजीर ज़माना, क्यों आज दीवाने को जगाता नहीं कोई, अर्थी तो उठा लेते हैं सब अश्क बहा के, अर्थी तो उठा लेते हैं सब अश्क बहा के, नाज़े दिले बेताब उठाता नहीं कोई, नाज़े दिले बेताब उठाता नहीं कोई, नाज़े दिले बेताब उठाता नहीं कोई। Thank you, Fawzia. Keep the applause going with a standing ovation. ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया,
ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन हजरात। दिस इज़ फौजिया दास्तानगो साइनिंग ऑफ। आप आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन विकास जलान, रूपाली जलान, सुदीप चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Yes, please. We need the team up on the stage. And while they come, I'll make a quick announcement. There is the cultural program happening in the Argus Opel. Please proceed there. It's going to be extremely engaging. आ जाइए विकास जी। बहुत बहुत रूपाली शुक्रिया। कहाँ है? Another round of applause, please, for this very, very, very nice program. एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरी तरफ से भी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम आपके शहर में दोबारा कब आ रहे हैं और हम और कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको फौजिया दास्तानगो को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पोस्ट करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हैदराबाद। थैंक यू। जी जी, ज़रूर ज़रूर।